قدیم مصر کا ایک چھوٹا سا گاؤں دریائے نیل کے کنارے آباد تھا۔ وہاں کے لوگ زراعت اور مچھلی پکڑنے سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ان کا گاؤں پرامن تھا، لیکن ایک مسئلہ ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ دریا کا پانی کبھی ضرورت سے زیادہ بہہ کر ان کے کھیتوں کو تباہ کر دیتا اور کبھی اتنا کم ہو جاتا کہ پینے کے لیے بھی مشکل پیش آتی۔ ایک دن فرعون کا ایک خاص ہرکارا گاؤں پہنچا اور اعلان کیا، فرعون معظم کا حکم ہے کہ جو بھی دریا کے پانی کو قابو میں لانے کا طریقہ بتائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، جو ناکام ہوگا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ اعلان سنتے ہی گاؤں کے لوگ گھبرا گئے۔ کوئی نہ جانتا تھا کہ پانی کو قابو کیسے کیا جائے، لیکن ایک آدمی ایسا تھا جو خود کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا تھا، حاتم المصری۔ حاتم نہایت مغرور اور خود پسند تھا۔ وہ خود کو گاؤں کا سب سے عقل مند آدمی سمجھتا اور دوسروں کو بے وقوف کہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے فرعون کے حکم کے بارے میں سنا، اس نے سینہ تان کر کہا، یہ کوئی مشکل کام نہیں، میں دریا کے پانی کو قابو میں لے آؤں گا اور انعام بھی حاصل کروں گا۔ گاؤں والے حیران ہو گئے۔ کسی نے پوچھا، حاتم تم کیسے کرو گے یہ سب؟ حاتم مسکرا کر بولا، بس دیکھتے جا، میری عقل کے سامنے دریا بھی جھک جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں وہ ایک ایسا منصوبہ بنانے والا تھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی ثابت ہو سکتا تھا۔ حاتم المصری اپنے کچے گھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک کے بعد ایک خیال آ رہا تھا، لیکن وہ کسی ایک پر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار ایک عجیب و غریب خیال اس کے ذہن میں آیا اور وہ خوشی سے اچھل پڑا، بس میں نے حل ڈھونڈ لیا، یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، بس میں ہی کر سکتا ہوں، اس نے خود سے کہا۔ اگلی صبح وہ گاؤں کے چوک میں پہنچا اور سب کو جمع کر کے فخریہ انداز میں بولا، میں دریا کے پانی کو قابو میں لے آنے کا طریقہ جانتا ہوں، لیکن مجھے سب کی مدد چاہیے۔ گاؤں والے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک بوڑھے نے پوچھا، حاتم آخر تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ حاتم نے سینہ تان کر کہا، ہم سب کو مل کر دریا کے پانی کو ایک بڑے برتن میں بند کرنا ہوگا، یوں پانی گاؤں میں نہ آئے گا اور نہ کم ہوگا۔ یہ سنتے ہی لوگ قہقہے مار کر ہنسنے لگے۔ کسی نے کہا، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ دریا کا پانی اتنا زیادہ ہے کہ بڑے سے بڑا برتن بھی اسے قابو میں نہیں کر سکتا۔ مگر حاتم اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے فرعون کے ہرکرے کو پیغام بھیجا کہ وہ دریا کے پانی کو روکنے کے لیے کام شروع کر رہا ہے۔ ہرکارا فرعون تک یہ خبر لے گیا اور فرعون نے سن کر حکم دیا، اگر حاتم کامیاب ہوا تو اسے سونے سے نوازا جائے گا، لیکن اگر ناکام ہوا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ سنتے ہی گاؤں کے لوگ اور زیادہ پریشان ہو گئے، مگر حاتم اپنی دھن میں مگن تھا۔ وہ دریا کے کنارے پہنچا، ایک دیو ہیکل مٹی کا برتن بنوانے کا حکم دیا اور پورے جوش و خروش سے کام میں جات گیا۔ حاتم کو یقین تھا کہ وہ پورے دریا کا پانی برتن میں قید کر لے گا، لیکن کیا واقعی ایسا ممکن تھا؟ یہ منصوبہ اس کے لیے ایک نئی مصیبت لے کر آئے گا۔ حاتم المصری کے حکم پر گاؤں کے کاریگر اور مزدور ایک بڑا مٹی کا برتن بنانے میں جات گئے۔ یہ برتن اتنا بڑا تھا کہ گاؤں والوں نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہ دیکھا تھا۔ حاتم پورے جوش سے کام کی نگرانی کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ہی خواب تھا، دریا کو قید کر کے فرعون کا انعام حاصل کرنا۔ جب برتن مکمل ہو گیا تو حاتم نے سب کو حکم دیا، اب ہم سب مل کر دریا کا پانی اس برتن میں ڈالیں گے۔ یہ سنتے ہی لوگ ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ کچھ نے قہقہے لگائے، کچھ نے سر پکڑ لیا اور کچھ کو یقین ہو گیا کہ حاتم واقعی بے وقوف ہے۔ ایک نوجوان نے ہمت کر کے پوچھا، حاتم یہ کیسے ممکن ہے؟ دریا کا پانی بے حساب ہے، یہ برتن کیسے اسے قابو میں رکھ سکے گا؟ حاتم نے اکڑ کر جواب دیا، بے وقوف مت بنو، جب ہم پانی نکال کر برتن میں ڈالیں گے تو دریا کا بہاؤ رک جائے گا۔ گاؤں والے مجبور تھے، کیونکہ اگر وہ حاتم کی مدد نہ کرتے اور وہ ناکام ہو جاتا
तो फिरौन उन्हें भी सजा दे सकता था। लिहाजा सब लोग बाल्टियां लेकर दरिया के किनारे पहुंचे और पानी भर भर कर बर्तन में डालने लगे। घंटों की मेहनत के बाद बर्तन आधा भर गया, लेकिन दरिया में कोई फर्क ना पड़ा, बल्कि पानी का बहाव वैसे का वैसा ही था। और पानी डालो, और पानी डालो, हातिम चिल्लाता रहा। आखिरकार जब बर्तन पूरी तरह भर गया तो अचानक कड़क एक जोरदार आवाज आई और बर्तन में लंबी दरार पड़ गई। फिर पटाख, बर्तन टूटकर चिकनाचूर हो गया और सारा पानी बहकर फिर से दरिया में शामिल हो गया। हातिम के चेहरे का रंग अलिफाड़ गया और गांव वालों की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। एक बूढ़े ने दांत पीसते हुए कहा, हातिम, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम सब मुश्किल में पड़ गए। अब सवाल यह था कि हातिम अपनी इस नाकामी को कैसे छुपाएगा और फिरौन को क्या जवाब देगा। बर्तन के चिकनाचूर होते ही हातिम अल मिस्री की खुद एतमादी भी रेजा रेजा हो गई। गांव वाले इसे घोर रहे थे जैसे अभी पकड़कर दरिया में फेंक देंगे, लेकिन हातिम आसानी से हार मानने वाला नहीं था। ये बर्तन बस जरा कमजोर था। उसने जल्दी से बहाना बनाया, मैं एक और ज्यादा मजबूत बर्तन बनवाऊंगा। लेकिन तभी एक और मुसीबत आन पहुंची। फिरौन का कासिद घोड़े पर सवार आ रहा था। हातिम अल मिस्री कासिद ने गरज कर कहा, फिरौन ने सुना है कि तुम दरिया को काबू में ले आए हो। वो खुद अपनी आंखों से देखने के लिए आने वाले हैं। अगर तुमने झूठ बोला है तो सजा के लिए तैयार रहो। ये सुनते ही हातिम के पैरों तले जमीन निकल गई। फिरौन खुद आ रहा था। अगर उसने दरिया का पानी काबू में न देखा तो हातिम की खैर नहीं थी। गांव के लोग भी डर गए। अगर हातिम की हमाकत की वजह से फिरौन को गुस्सा आ गया तो वो सब भी सजा के हकदार हो सकते थे। हातिम, अब बताओ क्या करोगे? एक बूढ़े ने गुस्से से कहा। हातिम ने जल्दी से दिमाग लड़ाया। अचानक एक चालाकी भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो बोला, मुझे मालूम था कि फिरौन खुद देखने आएंगे, इसलिए मैंने एक और तरकीब पहले ही तैयार कर रखी है। क्या मतलब? गांव वाले हैरान हो गए। हातिम ने आंख मारते हुए कहा, बस मेरे साथ चलो और वही करो जो मैं कहूं। अब सवाल यह था कि हातिम की नई तरकीब क्या थी। क्या वो फिरौन को धोखा दे सकेगा? अपनी बर्बादी का सामान खुद करेगा? हातिम अल मिस्री के दिमाग में एक चालाक मंसूबा आ चुका था। उसने गांव वालों को अपने करीब बुलाया और सरगोशी में कहा, जब फिरौन यहां आएंगे तो तुम सबको हैरानी और अकीदत का मुजाहरा करना होगा। तुम सब ये जाहिर करोगे कि मैंने वाकई दरिया के पानी को काबू में कर लिया है। गांव वाले हैरान रह गए। मगर कैसे? दरिया तो वैसे का वैसा बह रहा है, किसी ने कहा। हातिम ने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा काम है, तुम बस मेरा साथ दो, वरना फिरौन हम सबको सजा देंगे। ये सुनकर लोग डर गए और मजबूरना हातिम के साथ खेल में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह फिरौन शाही फौज और वजीरों के साथ दरिया के किनारे पहुंचा। इसके रोबदार चेहरे पर सवालिया निशान था। वो देखना चाहता था कि आया ये मिस्री वाकई दरिया के पानी को काबू में ला चुका है या नहीं। हातिम अदब से झक कर बोला, ए अजीम फिरौन, आपने मेरे बारे में सुना और मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। आइए अपनी आंखों से देखिए कि मैंने दरिया के पानी पर काबू कैसे पाया। फिरौन ने हैरानी से गांव वालों की तरफ देखा। सबके चेहरों पर खौफ था, लेकिन वो हातिम के मंसूबे में शामिल होने पर मजबूर थे। देखें अजीम फिरौन, मैंने दरिया के पानी को ऐसा काबू किया है कि जब मैं चाहूं पानी रुकता है और जब मैं चाहूं बहने लगता है, हातिम ने ऐलान किया। यह कहकर इसने दरिया की तरफ मुंह किया, अपनी आंखें बंद की और हाथ बुलंद करके बुलंद आवाज में कहा, ए दरिया, मैं तुम्हें रुकने का हुक्म देता हूं। ये सुनते ही गांव वालों ने सांसें रोक ली और तब ही कुदरत का एक अजीब करिश्मा हुआ। दरिया का पानी कुछ लम्हों के लिए हल्का सा सुस्त हो गया।
ये असल में एक मामूली कुदरती वाकया था, लेकिन फिरौन और उसके दरबारी हैरान रह गए। कमाल है, वजीरों में से एक बोला। हातिम ने मौका से फायदा उठाते हुए आंखें खोली, दरिया की तरफ देखा और कहा, अब देखो, मैं पानी को फिर से बहने का हुक्म देता हूं। ये कहकर इसने हाथ झटका और जैसे ही इत्तेफाक से दरिया की मौजें जरा तेज हुईं, फिरौन के दरबारी हैरत में पड़ गए। ये वाकई दरिया के पानी को काबू कर सकता है, एक वजीर बोला। फिरौन ने गहरी नजर से हातिम को देखा और बोला, अगर ये सच है तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर ये धोखा हुआ तो सजा के लिए तैयार रहो। हातिम मुस्कुराया, मगर अंदर से खौफजदा था। क्या वो अपनी चालाकी में कामयाब हो पाएगा, या उसका धोखा पकड़ा जाएगा? फिरौन के दरबारी अभी तक हैरान थे कि कैसे हातिम अल मिस्री ने दरिया के पानी को अपने हुक्म पर काबू में ले लिया। हकीकत यह थी कि दरिया का पानी कुदरती तौर पर एक लम्हे के लिए सुस्त हुआ था और फिर मामूल के मुताबिक बहना शुरू हो गया था, मगर हातिम ने अपनी चालाकी से इसे अपनी जादुई ताकत बनाकर पेश किया। फिरौन की आंखें शक व शुबा से भरी थीं। वो हरगिज अहमक नहीं था। उसने दरिया के किनारे जाकर खुद पानी का बहाव देखा, लेकिन वो जानना चाहता था कि क्या वाकई हातिम ने पानी पर काबू पा लिया है, ये सब एक धोखा है। हातिम अल मिस्री पर फिरौन ने रोबदार आवाज में कहा, अगर तुम वाकई दरिया के पानी को रोक सकते हो तो मेरे सामने एक बार फिर ऐसा करके दिखाओ। ये सुनते ही हातिम का रंग उड़ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि फिरौन इसे दोबारा आजमाने के लिए कहेगा। हातिम ने जल्दी से अपनी अदाकारी जारी रखी। उसने दरिया के सामने खड़े होकर हाथ बुलंद किए, आंखें बंद की और बुलंद आवाज में कहा, ए दरिया, मैं तुम्हें रुकने का हुक्म देता हूं। मगर इस बार दरिया के पानी में कोई फर्क नहीं आया। पानी मामूल के मुताबिक बहता रहा। हातिम के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और दोबारा चलाकर कहा, ए दरिया, रुक जाओ। मगर दरिया ने इसकी एक न सुनी और पानी वैसे ही बहता रहा जैसे हजारों सालों से बह रहा था। फिरौन के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो जान चुका था कि यह सब धोखा है। ये धोखाबाज है, फिरौन के एक वजीर चलाया। गांव के लोग भी खौफजदा हो गए। वो पहले ही जानते थे कि यह सब फराड था, लेकिन अब जबकि फिरौन को हकीकत का पता चल चुका था, वो भी मुसीबत में पड़ सकते थे। फिरौन ने अपनी तलवार निकाली और गजबनाक आवाज में कहा, हातिम अल मिस्री, तुमने न सिर्फ मेरा वक्त जाया किया बल्कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी की। तुम्हें सख्त तरीन सजा दी जाएगी। हातिम घबरा गया और घुटनों के बिल बैठकर रहम की भीख मांगने लगा। ए अजीम फिरौन, मैं गलती पर था, मुझे मुआफ कर दीजिए। मैं सिर्फ इनाम जीतना चाहता था। मगर फिरौन को धोखा देने वालों के लिए कोई रहम ना था। इस अहमक को दरिया में फेंक दो ताकि यह खुद देख ले कि पानी को काबू में लाना कितना आसान होता है। फिरौन ने सिपाहियों को हुक्म दिया। हातिम चीखता चलाता रहा, मगर सिपाहियों ने इसे दरिया के तेज बहाव में फेंक दिया। पानी ने इसे अपनी लपेट में ले लिया और देखते ही देखते वो बहता हुआ दूर निकल गया। गांव के लोग खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। किसी को हातिम पर तरस नहीं आया, क्योंकि उसकी अपनी हमाकत और धोखादही ने इसे इस अंजाम तक पहुंचाया था। फिरौन ने आखिरी बार दरिया की तरफ देखा और फिर बोला, यह सब के लिए सबक है, धोखा और हमाकत का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ये कहकर फिरौन अपनी फौज के साथ वापस चला गया और गांव वाले एक दूसरे को देखकर सर हिलाते रह गए। हातिम अल मिस्री, जो खुद को सबसे अक्लमंद समझता था, अपनी बेवकूफी की वजह से दरिया के बहाव में बह गया।